This morning, I want to bring a message that the Lord has been speaking to me in the past days. आज सुबह मैं परमेश्वर का वचन आपके बीच में ला रहा हूँ जो परमेश्वर मुझसे बहुत समय से बातें कर रहा है. The title goes, "Behold, good things came from Nazareth." और आज सुबह का शीर्षक ऐसा है, देखो नासरत से अच्छा आया. Behold, good things came from Nazareth. देखो नासरत से कुछ अच्छा आया है. Or behold, good came from Nazareth. देखो नासरत से अच्छा है. If we want to see this passage where this is all about, we see in John chapter 1. अगर हमको जो है इन सब चीजों के बारे में देखना है तो हमको देखना है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय में. In John chapter 1 verse 43 to 46 we see a conversation between two disciples. और हम यहाँ देखते हैं कि यूहन्ना रचित सुसमाचार के पहले अध्याय के 43 पद से लेके 46 पद तक. John chapter 1 verse 43 to 46 we see a conversation between Philip and Nathaniel. और हम देख रहे हैं वहाँ फिलिपुस और नथानिएल के बीच में एक वार्तालाप हो रहा है. There is a conversation where Philip is asking, can anything good come out of Nazareth? और वहाँ पे उन दोनों के बीच में वार्तालाप होने के टाइम पे एक ऐसी बात उठती है कि क्या कुछ अच्छा नासरत से आ सकता है. Nathaniel is asking this question, can anything good come out of Nazareth? और नथानिएल जो है ये एक ऐसा प्रश्न पूछ रहा है, क्या कुछ अच्छा नासरत से आ सकता है. And Philip is answering back by saying that come and see. और फिलिपुस जो है उसका उत्तर देते हुए कहता है, आओ और देखो. It's a very short invitation given by Philip towards Nathaniel. और यहाँ फिलिपुस जो है एक बहुत छोटा सा एक निमंत्रण दे रहा है कि तुम आओ और देखो. Nathaniel is asking, is there anything good from Nazareth? और यहाँ नथानिएल पूछ रहा है, क्या कुछ नासरत में अच्छा है. And Philip is saying, you need to come and see. और फिलिपुस कहता है, तुमको चलकर मेरे साथ देखना पड़ेगा. Amen, amen. This morning we have seen, we have come over to experience the presence of God. और आज के सुबह के समय हम यहाँ पर देख चुके हैं और अनुभव करने आए हैं उस परमेश्वर के कार्यों को. And I pray that God may work in our lives. और हम ये ऐसी प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवनों में कार्य करे. Now the question by Nathaniel is, can anything good come out of Nazareth? और यहाँ प्रश्न नथानिएल ऐसे पूछता है कि क्या कुछ अच्छा नासरत से आ सकता है. Now Nazareth was a place that had no real attention paid to it. और नासरत एक ऐसी जगह थी जिस पे ज्यादा लोग ध्यान नहीं देते थे. Nazareth was a very small town. नासरत जो है एक बहुत छोटा सा शहर था. And this town is not mentioned entirely in the Old Testament. और पुराने नियम में ये जो जगह है वो कहीं पे उसका पता ही नहीं हम पाते हैं. Nowhere in the Old Testament you will find the word Nazareth or any description about Nazareth. और पुराने नियम में हम नासरत नामक कोई जगह या नगर पाते ही नहीं है. And in case you are wondering how small Nazareth was, और अगर आप ऐसे सोच रहे हैं कि नासरत कितना छोटी जगह थी, the population estimate says that during Jesus' time the population was only between 400 and 500 people. और यीशु मसीह के समय में ऐसा कहा जाता है कि वहां की जो जनसंख्या थी वो 400 से 500 के बीच में ही थी. This was one of those towns where everybody knew their name. और ये एक ऐसी जगह नगर था जहां पर लोग एक दूसरे का नाम जानते थे. And this was the village where Jesus grew up. और ये वो ऐसा शहर गांव था जहां यीशु बड़ा हुआ था. And this was that village from where Jesus began his ministry. और यही वो ऐसा शहर था जिस जगह में यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई आरंभ की. And Jesus did go to Nazareth very often for his ministry और too. यीशु अपनी सेवकाई के लिए बार-बार नासरत जाया करते थे. And if you see in Luke chapter 4 verse 22, और अगर आप लूका रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय के 22वें पद में देखेंगे, you can see a very small community aspect to the town by the way they refer to Jesus over here. और जिस तरह से वहाँ यीशु को वो बोलते थे या उससे अपने आप को जोड़ते थे वो हम यहाँ पा सकते हैं. See, the people in Nazareth, they were speaking about Jesus. देखिए नासरत में लोग यीशु के बारे में बोलते थे. And it says in verse 4 verse 22, all spoke well of him. और वहाँ पे ऐसा लिखा है, सबने उसे सराहा. And all were amazed
amazed at the gracious words that came from his lips. और जो अनुग्रह की बातें उसके मुंह से निकलती थी, सब अचंभित हुए। And the people in Nazareth, they said, isn't this Joseph's son? और वहां पे लोग ऐसे कहते थे, क्या ये यूसुफ का पुत्र नहीं है? Because this was a very small town. क्योंकि एक बहुत ही छोटा नगर था ये। Everybody knew each other. सब लोग एक दूसरे को जानते थे। And in his hometown, Jesus was not accepted as the Messiah. और अपने ही शहर में वो जहां पर वो पला बड़ा था, वहां पर लोग उसको मसीहा कर कर नहीं पहचानते थे। Keep one thing in mind, Jesus was not accepted as Messiah or the Lord in Nazareth. ये हमको समझना है कि नासरत में लोग उसको मसीहा कर कर या प्रभु कर कर नहीं जानते थे। They didn't even call Jesus by his name. और लोग उसको उसके नाम से भी नहीं बुलाते थे। Instead, they referred him as Joseph's son. लेकिन लोग उसको ऐसे परिचय देते थे उसका कि यूसुफ का पुत्र है। And as to the town of Nazareth, this was not considered in high esteem by the Galileans too. और नासरत के लोगों के लिए जो है गलील के लोगों की दृष्टि में वो बहुत महान या उच्च नहीं माने जाते थे। Galileans did not consider Nazareth to be a big town, or the people staying over there, they were not given high esteem. और जो गलील के लोग थे वो नासरत में रहने वाले लोगों को बहुत उच्च या बहुत उच्च श्रेणी के नहीं मानते थे। And this is evident by the question Nathanael is asking. और हम यहाँ देख रहे हैं कि नथानियल जो है ये प्रश्न पूछ रहा है। He is asking, can anything good come out of और Nazareth? वो ऐसे प्रश्न पूछ रहा है कि नासरत से कुछ अच्छा निकल सकता है? Because the people in Nazareth, they were not wealthy. क्योंकि नासरत के लोग जो है बहुत धनी नहीं थे। They were not well off. वो बहुत अच्छे नहीं थे अपने They स्तर में। earned a very modest living. और उनका जो रहन सहन था वो बहुत साधारण था। And this was not a happening place. और ये बहुत यहाँ पे बहुत कुछ चकाचौंध वाली चीजें नहीं होती There was थी। nothing big happening in Nazareth. कोई बहुत बड़ी चीजें नासरत में नहीं होती थी। And there is another truth on Nathanael's question that can anything good come from और Nazareth? ये बात सत्य थी जो नथानियल ऐसे पूछता है कि कुछ अच्छा नासरत से आ सकता है। Clearly, because many Jews believed that Messiah will not be from Nazareth. क्योंकि ये बात लोग ऐसे मानते थे और जानते थे कि नासरत से जो है मसीहा नहीं आएगा। They couldn't accept the reality that Jesus is the Messiah who is being referred from Nazareth. और लोग इस चीज को विश्वास ही नहीं करते थे कि ये जो यीशु मसीहा है वो नासरत से आया है। How is it possible that Jesus can come from Nazareth? ये ऐसे कैसे हो सकता है कि यीशु नासरत से आएगा? That was something that was bothering the Jews and the Galileans over और there. जो यहूदी लोग थे और जो गलील के लोग थे वो चीज लोगों को बहुत परेशान कर रही थी। Clearly, if Jesus is the Messiah, he is going to come from a better place. अगर यीशु मसीहा है तो वो अच्छे शहर से आएगा। A better place from Nazareth. नासरत से तो अच्छी से ही जगह में आएगा। Somewhere out of Nazareth. नासरत से कोई बाहर दूसरी जगह से आएगा। Maybe from Jerusalem or from Bethlehem or from any other area. या तो वो यरूशलेम से आएगा, बेथलेहम से आएगा। But they were not expecting Jesus to come from Nazareth. लेकिन वो ऐसी उम्मीद नहीं कर रहे थे कि यीशु जो है वो नासरत से आएगा। But let me tell you this morning an interesting fact. लेकिन आज सुबह मैं आपको बहुत एक रुचिकर सत्य बताता हूँ। This is the only time a disciple is mentioning that Jesus is from Nazareth. लेकिन ये एक पहली बार है जब एक जो है चेला जो है यीशु के बारे में बताता है कि वो नासरत से आएगा। Among the 12 disciples, the only one instance where we see that a disciple is referring as Jesus of Nazareth, that is what we see in John chapter 1 verse 43 to 46. और हम देख रहे हैं कि यूहन्ना रचित सुसमाचार के पहले अध्याय में ये 12 चेलों में से पहली बार ऐसा हुआ है कि एक चेला उसमें से ऐसा कहता है कि ये यीशु जो है वो नासरी है, नासरत से है। And the only people who refer Jesus as Christ as Jesus of Nazareth are the skeptics, the crowds and the demons. और जो लोग थे और जो demons जो दुष्टात्माएं निकलती थी और जो लोग वहां के थे वो कहते थे ऐसा कि ये यीशु है जो नासरी है।
Now Nathanael is referring Jesus from Nazareth. अब नथानियल ऐसे कहता है कि ये यीशु नासरत से है। And apart from that, we see the skeptics, the crowds, and the demons referring Christ as Jesus from Nazareth. अब हम देख रहे हैं कि लोग और जो दुष्टात्माएं थी वो बताती हैं कि यीशु जो है वो नासरत से है। In Luke chapter 4 verse 34 we see हम देखते हैं कि लूका रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय के 34वें पद में a man who is demon possessed. हम देखते हैं वहां एक आदमी है जो दुष्टात्मा ग्रसित है। The moment he sees Jesus, he is saying, जैसे वो यीशु को देखता है वो कहता है, what have you to do with me? तुझको मेरे साथ क्या काम? What have you to do with us, Jesus of Nazareth? यीशु जो तू नासरी है, तुझको मेरे साथ क्या काम? Have you come to destroy us? क्या तू हमको नाश करने के लिए Now आया when है? even demons could say that Jesus is from Nazareth. देखो दुष्टात्मा भी ये बोल सकती थी कि यीशु जो है वो नासरत से था। Keep this in mind, even demons could identify that Jesus is from Nazareth. देखिए शैतान से जो ग्रसित लोग थे वो भी ये समझ पाए कि यीशु नासरत से था। And then in John chapter 19 verse 19, और जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 19वें अध्याय के 19वें पद में आते हैं, when Jesus is killed on the cross, और जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, Pontius Pilate actually nails this inscription above him. और वहां पिलातुस जो है एक दोष पत्र क्रूस के ऊपर जो लिखकर लगाता है वो ये है, It's written, Jesus of Nazareth, the King of the Jews. वहां ऐसा लिखा है उस क्रूस के ऊपर, यीशु नासरी यहूदियों का राजा। Now the disciple is referring Jesus from Nazareth. अब देखिए चरवाहे लोग बताते हैं कि यीशु नासरत से है। The crowds, the demons, they are referring Jesus from Nazareth. भीड़ और दुष्टात्मा से ग्रसित लोग बता रहे हैं कि यीशु नासरत से Now है। the king, the Pontius Pilate, he is also saying that this is Jesus from Nazareth. अब पिलातुस जो उस समय का राजा था वो भी कहता है कि यीशु नासरत से है। Now let me tell you, this was not a title. अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये कोई यीशु का शीर्षक नहीं It था। was a taunt. वो एक टॉन्ट कसने वाली बात थी। It was not a title by Pilate. वो पिलातुस के द्वारा कोई इसको एक शीर्षक नहीं मिला था। It was a taunt, very, very deliberately written over there. लेकिन उसको टॉन्ट करके सुनाने के लिए ऐसा लिखा गया था। But let me tell you the triumph of Nazareth this लेकिन morning. मैं आपको आज सुबह के समय नासरत की विजय के बारे में बताता हूँ। After the cross, everything changed. जैसे ही क्रूस हुआ उसके बाद सब चीजें बदल गई। After the cross, everything changed. क्रूस के बाद सब कुछ बदल गया। Amen. Amen. We see in Acts chapter 2 verse 22 to 24. हम देखते हैं प्रेरितों के काम की पुस्तक उसके 2 अध्याय के 22 पद से लेके 24वें पद तक। We see Peter stand up at the Pentecost and say aloud. हम देखते हैं वहां पतरस जो है पेंतिकुस के दिन खड़ा होता है और जोरों से इस बात को कहता If है। you have your Bibles, turn with me to Acts chapter 2 verse 22, 23 and 24 अगर आपके please. पास आपकी बाइबलें हैं तो कृपया करके प्रेरितों के काम की पुस्तक उसके 2 अध्याय 24 पद से लेके 22 पद से लेके 24 पद तक Let's see the triumph of Nazareth over here. आइए देखते हैं कैसे वो नासरी या नासरत जो है विजयी पाता है। Let's see how Peter is proclaiming over here. यहाँ देखते हैं पतरस कैसे घोषणा करता है। See in verse 22 to 24. देखिए 22वें पद से लेके 24वें पद It तक। says, Men of Israel, hear these words. हे इजराइलियों ये बातें सुनो। Jesus of Nazareth, यीशु नासरी a man attested by you by एक God, मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होना प्रमाणित था, with mighty works and wonders and signs उन सामर्थ के कामों और आश्चर्य के कामों that God did through him. और चिन्हों को प्रकट है जो परमेश्वर ने उसके द्वारा किए थे। In your midst, as you yourself know this. तुम्हारे बीच में किए थे जिसके बारे में तुम स्वयं जानते हो। This Jesus delivered up according to the definite plan and foreknowledge of God. उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्ण ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया। You crucified and killed तुमने उसको क्रूस पर चढ़ाया और मार डाला।
by the hands of the lawless men. तुमने जो अधर्मी लोग थे उनके हाथों के द्वारा, God raised him up, परंतु उसको परमेश्वर ने मृत्यु में से उठाया, losing the pangs of death, जो मृत्यु की रस्सियां थी, बंधन थे, उससे छुड़ाया, because it was not possible for him to be held by it. क्योंकि वो उसके लिए संभव नहीं था कि वो उसके द्वारा पकड़ाया जाए. Just see the triumph of Nazareth over here. देखिए यहाँ पर नासरी का जो एक विजय है उसके बारे में देखिए. Amen. Hallelujah. Hallelujah. We see Peter is proclaiming that Jesus of Nazareth, a man attested by God. यहाँ पे हम देख रहे हैं पतरस घोषणा करता है यीशु नासरी जो जिसके प्रमाण वो देता है. He has done mighty works. उसने अद्भुत कार्य किए हैं. He has done wonders. उसने अद्भुत कार्य किए हैं. This Jesus of Nazareth has done wonders and miracles. इस यीशु नासरी ने अद्भुत कार्य और चमत्कार किए हैं. Praise Jesus. प्रभु की स्तुति हो. Amen. Later we see Peter again speaking about Jesus of Nazareth in Acts chapter 3 verse 6. और हम देखते हैं पतरस फिर एक बार दोबारा से इस यीशु नासरी के बारे में तीसरे अध्याय में कहता है. In Acts chapter 3 verse 6, Peter and John, they're on the way to temple. और हम देख रहे हैं यहाँ पतरस और यूहन्ना जो है वो मंदिर की ओर जा रहे हैं. They're on the way to temple to pray to God. अब पतरस और यूहन्ना मंदिर की ओर, आराधनालय की ओर प्रार्थना के लिए जा रहे They're हैं. on the way to sing and praise and thank God. और वो गीतों को गाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए जा रहे हैं. Now let us see how Peter is speaking about Jesus of Nazareth over here. यहाँ देखिए कि पतरस कैसे उस यीशु नासरी के बारे में कहता है. He is saying, I have no silver and gold. वहां पर पतरस ऐसे कहता है, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है. I have nothing with me. मेरे पास कुछ भी नहीं है. But what I do have, I give to you. परंतु जो मेरे पास है वो मैं तुझको देता हूँ. I have nothing with me. मेरे पास कुछ भी नहीं है. But whatever I have, I'm giving it to लेकिन you. मेरे पास जो कुछ भी है मैं तुझको देता हूँ. In the name of Jesus of Nazareth, rise up and यीशु walk. मसीह नासरी के नाम से चल फिर. Amen. Hallelujah. This is the Jesus of Nazareth that we are worshiping this morning. यही वो यीशु नासरी है जिसकी आराधना आज सुबह हम कर रहे हैं. Amen. Hallelujah. Let me tell you, this Jesus of Nazareth has done mighty miracles in our life. इस यीशु नासरी ने ही हमारे जीवन में अद्भुत चमत्कार And किए हैं. he is still capable to do beyond all that we can ask and और imagine. वो अभी भी क्षमता रखता है, योग्य है कि हमारे जीवनों में हमारी अपेक्षाओं से बढ़कर कार्य And करे. if you have experienced the goodness of the Lord, may I ask you to raise your hands above and thank the Lord this अगर आपने morning. परमेश्वर के अनुग्रह को अनुभव किया है, उसको हाथों को उठाकर उस यीशु को If धन्यवाद he दें. has answered your prayers in the past days, let us raise our hands and thank the अगर Lord. भूतकाल में उस परमेश्वर ने आपकी प्रार्थनाएं सुनी है, हाथों को उठाकर उसको This धन्यवाद दें. Jesus of Nazareth has done wonders and इस miracles. यीशु नासरी ने हमारे जीवन में अद्भुत कार्य और चमत्कार He किए हैं. has done mighty works. उसने अद्भुत कार्यों को किया He है. has done great things in our life, in our family. हमारे जीवनों में, हमारे परिवारों में इस परमेश्वर ने महान काम को किया है. He has done supernatural things in our life. उसने हमारे जीवन में दैव्य कार्यों को किया है. Praise God for Jesus of Nazareth this इस morning. यीशु नासरी को महिमा मिले आज सुबह. Praise the Lord. Hallelujah. This Christmas may you experience wonders that cannot be fathomed. इस सुबह के समय मेरी ये प्रार्थना है कि इस क्रिसमस में आप परमेश्वर के ऐसे कार्यों को अनुभव करें जो आपकी समझ से बाहर हैं. This Christmas may you experience miracles that cannot be counted. इस क्रिसमस में आप ऐसे चमत्कारों को अनुभव करें जिसकी गिनती ना हो. Believe that good things will come out of Nazareth. विश्वास करें इस नासरत से अच्छी चीजें निकलेंगी. Believe and pray and say, yes, indeed, I receive this in Jesus' name. विश्वास करें और आमीन बोले कि हाँ, मुझे पता है कि अच्छी चीजें इस नासरत से निकलेंगी. Amen. Praise the Lord. For a moment, I want you to understand why Jesus being from Nazareth, a derogatory place, should be
an encouragement for you this morning. मैं आपको बताना चाहता हूं, जबकि यीशु मसीह नासरत से था, जो बहुत ही एक नकारात्मक सी चीज सुनाई देती है नासरत के बारे में, मैं बताना चाहता हूं वहां से उस यीशु के बारे में एक महान बात क्या है। Let's turn our attention to Hebrews chapter 4 verse 15. आइए इब्रानियों की पत्री उसके 4 अध्याय और उसके 15वें पद को खोलें। Turn with me to Hebrews 4:15, please. आइए इब्रानियों की पत्री उसके 4 अध्याय का 15वां पद खोलें। Let's see what it's written all about. For we do not have a high priest who is unable to empathize with our weaknesses. यहाँ ऐसा लिखा है, क्योंकि हमारा ऐसा महाराजा नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, But we have one who has been tempted in every way, वरन वे ऐसी कि सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, just as we are. जैसे हम परखे जाते हैं, Yet he did not sin. तो भी निर्दोष पाया गया। This Jesus of Nazareth is blameless. ये जो यीशु नासरी है वो निर्दोष है। This Jesus of Nazareth is righteous. ये जो यीशु जो नासरी है वो धर्मी है। This Jesus of Nazareth is holy. ये जो यीशु नासरी है वो पवित्र है। Hallelujah. Hallelujah. And we see in Isaiah and in Revelation we see angels are singing and saying that holy, holy and holy. हम देखते हैं प्रेरितों के काम की पुस्तक प्रकाशित वाक्य में वहां स्वर्गदूत परमेश्वर के लिए कहते हैं पवित्र पवित्र पवित्र। This Jesus came down in human form. ये परमेश्वर जो है वो मनुष्य के रूप में He आया, became like us. वो हमारे समानता में बन He गया, was tempted in every way. वो हर प्रकार से परीक्षाओं में डाला गया, Yet he did not sin. लेकिन उसने फिर भी पाप नहीं किया। This is what I want to say to you this morning. यही आज सुबह मैं आपको बताना चाहता हूँ। We worship a God who is sinless. हम एक ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो निर्दोष है, निष्पाप है। We worship a God who does everything good in his time. ये परमेश्वर, ऐसे परमेश्वर की हम आराधना करते हैं जो नियुक्त समय में, सही समय में भला कार्य करता We है। worship a God who knows you inside out. हम एक ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो अंदर और बाहर आपको अच्छे We से जानता worship है। a God who can make way where there is no हम way. ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो वहां राह बनाता है जहां राह नहीं है। Thank you, Jesus of Nazareth, this धन्यवाद morning. उस यीशु नासरी को। आज सुबह। Hallelujah. What I love about Jesus and what makes him such a wonderful savior is this. ये मेरे को जो चीज सुंदर उस यीशु के बारे में लगती, जो उसको हमारा उद्धारकर्ता बनाता है, वो ये है Is that he has walked in our shoes. कि वो हमारे जैसा बन गया। Not many of us were born with influence. हम में से कई लोग बहुत प्रभावशाली होकर इस संसार में पैदा नहीं हुए Not थे। many of us were born with nobility हम में से कई लोग बहुत उच्च श्रेणी में होकर पैदा नहीं or हुए थे, some level of distinction. या कुछ अलग भिन्न होकर हम पैदा हुए थे। Most of us were born in a very non-distinct manner. हम में से कई लोग बहुत साधारण रूप में पैदा हुए थे, And while the people around us celebrated, लेकिन जब हमारे चारों लोगों ने मनाया इस बात को, the whole world wasn't put on notice because you arrived. क्योंकि लेकिन किसी ने भी ऐसा कुछ वहां पर लिखा नहीं कि आप लोग का जन्म हो चुका है। The beauty of Jesus coming from Nazareth tells us that God can use you and work through you. लेकिन यीशु मसीह जो नासरत से उत्पन्न हुआ, उसकी सुंदरता ये है कि हमको वो ये बताती है कि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवनों में भी कार्य कर सकता है। Let me emphasize this statement once again. एक बार फिर से मैं इस बात को कहना The चाहूंगा। beauty of Jesus coming from Nazareth tells us that God can use you and work through you. यीशु मसीह जो नासरत से होकर आया है या उत्पन्न हुआ है, उसकी सुंदरता यह है कि परमेश्वर आपके जीवनों में और आपके जीवनों के द्वारा कार्य कर सकता है। Because God has a history of using the low things and raising them up. क्योंकि परमेश्वर के इतिहास में उसने ऐसा कई बार किया है कि उसने निम्न लोगों को उठाया और ऊंचा उठाया है। He has the
history of using the weak. उसके इतिहास में ऐसा कहा गया है कि उसने कमजोरों को इस्तेमाल किया। He has the history of using the shame. उसका इतिहास कहता है कि जो शर्मिंदगी में थे परमेश्वर ने उनको इस्तेमाल किया, So that he gets the glory. ताकि उसको महिमा मिल जाए, He is been praised. ताकि उसको आदर मिले, He is been magnified. ताकि उसका नाम ऊंचा उठाया His जाए, name is to be glorified. ताकि उसके नाम को आदर मिले। Praise the Lord. Hallelujah. परमेश्वर की स्तुति हो। Brothers and sisters, भाइयों और बहनों, think of what you were when you were called. सोचिए उस समय के बारे में कि आप वो कौन थे जब परमेश्वर ने आपको बुलाया था। Not many of you were wise by human standards. आप में से कई लोग मनुष्य मानवीय स्तर के अनुसार बहुत बुद्धिजीवी नहीं थे। Not many were influential. हम में से कई लोग बहुत प्रभावशाली नहीं थे। Not many of us were born of noble birth. हम में से कई लोग बहुत उच्च श्रेणी में पैदा नहीं हुए थे। But let's turn to 1 Corinthians chapter 1 verse 26 and 27. लेकिन आइए मिलकर पहले कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय उसका 26 और 27वां पद खोलें। It's a very important verse for all of us. ये पद हम सबों के लिए बहुत महत्वपूर्ण We है। were not born out of influential. हम जो है बहुत प्रभाव में या प्रभावशाली रूप से पैदा नहीं हुए Not थे। many were of noble birth. हम में से कई लोग जो हैं बहुत ज्यादा एक अच्छे श्रेणी में पैदा नहीं हुए थे। But let's see 1 Corinthians chapter 1 verse 26 and 27. लेकिन आइए मिलकर देखते हैं पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय 26 और 27वां पद क्या कहता See है। what's written. God chose the foolish things of the world. वहां पे ऐसा लिखा है परमेश्वर ने इस जगत के मूर्खों को चुन लिया। God chose the foolish things of the world वहां ऐसा लिखा है परमेश्वर ने इस जगत के मूर्खों को चुन लिया to shame the wise. ताकि वो बुद्धिमानों या ज्ञानवानों को लज्जित कर सके। God chose the weak things of the world परमेश्वर ने इस जगत के निर्बलों को चुन लिया to shame the strong. ताकि बलवानों को लज्जित कर सके। Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Now Lord. see Nathaniel's question. अब देखिए एक बार फिर से नथानियल का प्रश्न। Let's come back to John chapter 1. आइए मिलकर दोबारा से यूहन्ना की सुसमाचार की ओर आ जाते See, हैं। Nathaniel is asking this question. नथानियल वहां पर ऐसा प्रश्न पूछ रहा है, Can anything good come out of Nazareth? क्या कुछ अच्छा या कुछ भला वस्तु नासरत से आ सकती It's है? a question. वो एक प्रश्न है। Is there anything good from this place? क्या इस जगह से कुछ अच्छी वस्तु आ सकती है? Can we expect something good from Nazareth? क्या हम कुछ अच्छे की अपेक्षा नासरत से कर सकते हैं? Because Nathaniel is saying, I don't see anything good over क्योंकि here. नथानियल कह रहा है मैं इस नासरत में कुछ भी अच्छा नहीं देखता हूँ। This is a very small ये town. बहुत ही एक छोटा सा नगर है। This is not a happening place. ये बहुत ही एक चमकदार जगह नहीं है। People over here are not well off. लोग जो यहाँ रहते हैं वो बहुत उच्च नहीं है, They are not wealthy over here. वो बहुत धनवान नहीं है, There is no form of development over here. यहाँ पर कोई प्रगति नहीं हो रही है। So can anything good come from Nazareth? क्या कुछ अच्छा नासरत से निकल कर आ सकता है? 2023 years later, we still believe this. 2023 वर्ष के बाद भी हम आज भी विश्वास We करते हैं। still believe this. हम आज भी ये विश्वास करते हैं। We hide the embarrassing parts of our stories. हम जो है अपने जीवन की जो शर्मिंदगी वाली जो घटनाएं हैं वो हम छुपा देते हैं। We try to hide those things from us. हम उन चीजों को छुपाते हैं अपने जीवन से, Because nothing good is going to come through us. क्योंकि हमारे अंदर से कुछ अच्छा नहीं आएगा। That is what we believe. हम ऐसे सोचते हैं अपने बारे में। Nothing good can come out of my failure as a husband or a wife. और मेरे जो हार की जो स्थिति है जीवन में से उसमें से कुछ भी अच्छा निकल कर नहीं आ सकता। Nothing good can come out of my abuse. मेरे ऊपर जो तिरस्कार मुझे मिला है उससे कुछ अच्छा निकल कर नहीं आ सकता। Nothing good can come out of my rejection or shame. जो मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई है उससे कुछ अच्छा निकल कर नहीं आ सकता। Nothing good can come out of my greatest sorrows. और मेरे जो सबसे बड़े दुख हैं उससे कुछ अच्छा निकल कर नहीं आ सकता। Nothing good can come against the injustice done to me. जो मेरे ऊपर अन्याय हुआ है उससे कुछ अच्छा निकल कर नहीं आ सकता। Nothing good can come out
of the inadequacies of my life. मेरे अंदर जो निम्नता है, जो मेरी क्षमताएं कम है, उससे कुछ अच्छा निकल कर नहीं आ सकता। But this morning we have a good news. लेकिन आज सुबह हमारे पास एक सुसमाचार है। We have a good news this Christmas. इस क्रिसमस पे हमारे पास एक सुसमाचार है। Yes, indeed, good things will come out of Nazareth. लेकिन हाँ, ये सच है, सचमुच में नासरत से अच्छा निकल कर आ सकता है। Believe and say yes, good things will come out of Nazareth. विश्वास करें और हाँ बोले कि नासरत से अच्छा निकल कर आ Good सकता things है। will come out of my life. मेरे जीवन से अच्छा निकल कर आ सकता है। You may be a failure now. शायद इस समय आप एक हार का जीवन जी रहे हैं। Injustice has been done against you. अन्याय आपके जीवन में हुआ है। People say a lot about you. लोग आपके बारे में बहुत सी बातें कहते हैं। But a time is coming where God is going to make everything good and beautiful. लेकिन एक समय ऐसा आने जा रहा है जहाँ परमेश्वर आपके लिए सब कुछ अच्छा करेगा और सुंदर करेगा। Amen, amen. Do you believe? Do you क्या आप believe विश्वास so? करते हैं? Amen. I love Philip's response over here. मुझको यहाँ पे फिलिपुस का जो प्रत्युत्तर था वो बहुत अच्छा लगा। See in verse 46, John chapter 1 verse 46. और यहाँ पे देखिए कि 46 पद में कैसा लिखा है, यूहन्ना का सुसमाचार उसके पहले अध्याय। We see Philip's response. यहाँ पे देखते हैं हम फिलिपुस ने ये उत्तर दिया। Just 2 words, come and see. चलो देखो। Come and see, Nathaniel. नथानिएल चलो और देखो। You need to go and explore what God has kept for you in Nazareth. आपको चलकर देखना है कि नासरत में परमेश्वर ने आपके लिए क्या रखा हुआ है। You and I are the come and sees that God will use for. हम वो लोग हैं जहां पर लोग आएंगे और देखेंगे परमेश्वर ने जो रखा हुआ है। You and I are the come and sees that God uses. हम वो लोग हैं जहां परमेश्वर हमको इस्तेमाल करेगा कि आओ और देखो। And that is what we see through the response by Philip. और यही हम प्रत्युत्तर में देखते हैं कि फिलिपुस उत्तर देता He है। is saying, come and see. फिलिपुस कहता है आओ और देखो। And it's the shortest invitation. और ये सबसे एक छोटा एक निमंत्रण था। And it captures the scope of the entire gospel. और ये सुसमाचार का जो पूरी जो पूर्णता है उसके बारे में बता देती है। 2 words, come and see. 2 बातें, आओ और देखो। Come, get up and take a step of faith. उठो और एक कदम उठाओ विश्वास का। God is asking you to get up and take a step of faith. परमेश्वर आपसे आज सुबह कहता है उठिए और विश्वास का एक कदम उठाइए। This Christmas, God is asking you to come to Him. इस क्रिसमस में यीशु आपसे कहता है उसके पास आ जाइए। God is asking you to go near to Him. यीशु आपसे कहता है उसके निकट आ जाइए। The verse says, come near to me and I will draw near to you. परमेश्वर का वचन कहता है तुम उसके निकट आओ तो वो तुम्हारे निकट आएगा। So God is asking you to go to Him. इसलिए यीशु आपसे कहता है उसके पास जाइए। And then we see the word see. और फिर वहां पर लिखा है देखो। God rewards those who seek Him. जो भी परमेश्वर को की खोज करते हैं उसको देखते हैं, परमेश्वर ने प्रतिफल देता Keep this in mind. Keep this in mind. इस चीज को ध्यान रखें। God rewards those who seek Him. जो लोग उसकी खोज करते हैं परमेश्वर उनको प्रतिफल देता And है। if you seek Him, you will see Him. अगर आप उसकी खोज करेंगे तो आप उसको देख भी लेंगे। If you seek Him, you are going to see Jesus. अगर आप उसकी खोज करेंगे तो आप उसको देख भी लेंगे। This Christmas, let us see Jesus. इस क्रिसमस में आइए मिलकर उस यीशु को देखें। This Christmas, let us experience His sweet touch. आइए इस क्रिसमस में उस यीशु के अद्भुत उसके स्पर्श को महसूस करें। This Christmas, let us experience His sweet presence. आइए इस क्रिसमस में उस यीशु की अद्भुत उपस्थिति को अनुभव करें। You know why? Because Jesus is really over here. क्योंकि पता है क्यों? क्योंकि यीशु सचमुच में यहाँ है। And you will see what Jesus can do in your और life. आप देखेंगे कि यीशु आपके जीवन में क्या करेगा। Praise the Lord. Hallelujah. Praise be to God this morning. प्रभु की स्तुति हो आज सुबह के समय। Now, there are 3 good things that can come from Nazareth. और 3 ऐसी चीजें हैं जो नासरत से अच्छी निकल के आ 3 सकती things हैं। that will come out of Nazareth. 3 ऐसी चीजें हैं जो नासरत से निकल कर आ सकती And हैं। these 3 things has been our theme this Christmas और season. वो 3 ऐसी चीजें हैं जो इस क्रिसमस में हमारी शीर्षक रहे हैं। You can see
our banner over here, we have written joy, peace, and hope. आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है आनंद, शांति और आशा. Joy, peace, and hope. These three things will come out of Nazareth. आनंद, शांति और आशा नासरत से निकल कर आएगा. Amen. Hallelujah. If you have your Bibles, turn with me to 2 Thessalonians chapter 3 verse 16. दूसरा थिस्सलुनीयों की पत्री की ओर अपनी बाइबिलों को पलटे, उसका 3 अध्याय और उसका 16 पद. 2 Thessalonians chapter 3 verse 16. Let me read for you. दूसरा थिस्सलुनीयों उसका 3 अध्याय का 16 पद. Now may the Lord of peace himself give you peace. अब प्रभु जो शांति का सोता है, आप ही तुम्हें शांति दे. At all times. सदा के लिए. At every minute of your life. और हर प्रकार से तुमको हर मिनट तुमको शांति At दे. all times and in every way. हर तरह से और हर रीति से तुमको शांति दे. And see what the word says. It ends by saying, the Lord be with you all. और वहां पर वो पद का अंत ऐसे होता है, प्रभु तुम्हारे साथ रहे. The peace of Jesus may fill you this morning. प्रभु यीशु मसीह की शांति आप लोगों को आज सुबह भर दे. The peace that passeth all understanding may fill you this morning. वो शांति जो समझ से परे है, वो आप सबों के हृदयों को आज सुबह भर दे. This Christmas season may you experience the peace of God. इस क्रिसमस के अवसर में होने पाए आप परमेश्वर की शांति को अनुभव करें. Because the word says the Lord of peace. क्योंकि वचन ऐसा कहता है, शांति का प्रभु. His name is Lord of peace. वो शांति का राजकुमार है. And he is here to bless you. और वो आज सुबह हमारे बीच में है, हमें आशीष देने के Praise लिए. Jesus. Hallelujah. Romans chapter 16 verse 20. रोमियो की पत्री उसका 16वां अध्याय और उसका 20 पद. Romans 16:20. It says, रोमियो की पत्री उसके 16वां अध्याय का 20 पद. the God of peace will soon crush Satan. वहाँ ऐसा लिखा है, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव के नीचे शीघ्र कुचलवा देगा. Under your feet. तुम्हारे पैरों के नीचे. The grace of our Lord Jesus Christ be with you. हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारे साथ होता Now रहे. what it says, the God of peace. वहाँ ऐसा लिखा है, प्रभु यीशु मसीह जो अनुग्रह का है. In 2 Thessalonians we see Lord of peace. वहाँ ऐसा दूसरे थिस्सलुनीयों की पत्री में ऐसा लिखा था कि जो शांति का प्रभु है. And in Romans we see God of peace. और यहाँ लिखा है जो शांति का परमेश्वर है. What is he going to do? He's going to crush Satan under your feet. वो शैतान को तुम्हारे पांव के नीचे कुचल देगा. Amen, amen. Past months Satan has been trying to take peace away from you. कईयों के जीवन में पिछले समयों में शैतान आपकी शांति को चुराने की कोशिश कर रहा है. Every time you see something or the other happening in your life. आप देख रहे हैं आपके जीवन में कुछ ना कुछ चलता रहता है. There is no peace in the family. शांति नहीं है परिवार के अंदर. You have been wondering what is happening. आप सोचते हैं, समझ नहीं पाते हैं हो क्या रहा है. This morning let me declare this word over your आज life. सुबह के समय में परमेश्वर का वचन आपके ऊपर घोषणा करता The हूँ. God of peace will soon crush Satan. परमेश्वर जो शांति का परमेश्वर है, वो जल्द शीघ्र जो है शैतान को आपके पैरों के नीचे कुचल देगा. Receive this word in Jesus' name. यीशु के नाम से इस वचन को स्वीकार करें. And may the peace of God prevail over your life. आपके जीवन में परमेश्वर की शांति राज्य करे. Amen. Hallelujah. Hallelujah. The next good thing that will come out of Nazareth. तीसरी अच्छी बात जो नासरत से निकल कर The आएगी. next good thing, the second good thing that will come out of Nazareth. दूसरी अच्छी चीज जो नासरत से निकल कर आएगी, That is joy. वो है आनंद. The joy of the Lord. वो परमेश्वर का आनंद. Let's turn to Psalm 16 verse 11. आइए भजन संहिता उसके 16वें अध्याय का 11वें पद को खोलें. Psalm 16:11 it says, in your presence there is fullness of joy. वहाँ ऐसा लिखा है, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है. In your presence there is fullness of तेरी joy. उपस्थिति में, तेरे निकटता में आनंद की भरपूरी है. We have experienced this presence, right? हमने परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव किया है कलीसिया. There are times you were so tense you couldn't say anything and you were in the presence of the Lord, and through the praise and worship the Lord filled you
you with his कई joy. बार ऐसा हुआ, आप बहुत तनाव में थे, फिर आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे, आप आराधना और प्रार्थना करने लगे और परमेश्वर ने आपको अपने आनंद से भर दिया। The word is very right. In your presence there is fullness of joy. परमेश्वर का वचन बहुत सत्य है जो कहता है उसके निकट आनंद की भरपूरी है। Jeremiah chapter 15 verse 16. यिर्मयाह उसका 15वां अध्याय और उसका 11वां पद। 15 verse 16, Jeremiah. यिर्मयाह उसका 15वां अध्याय का 16वां पद। Your words were found जब तेरा वचन मेरे पास पहुंचा and I ate them. और तब मैंने उसको खा लिया। Your words were found and I ate them. जब मैंने तेरे वचन को पाया तो मैंने उसे खा लिया। And your words became a joy to और me. तेरा वचन जो है मेरे हृदय, मेरे मन के लिए हर्ष बन Oh, गया। your words became a joy to me and a delight to my heart. तब तेरा वचन मेरे हृदय, मेरे मन के लिए हर्ष बन गया और आनंद का कारण हुआ। This morning I want you to pledge before God saying that I will read your word. आज सुबह आइए परमेश्वर की उपस्थिति में प्रतिज्ञा ले कि परमेश्वर मैं तेरे वचन को पढ़ूंगा। Most of us have no habit of reading the word of the Lord. हमें से कईयों की आदत नहीं है परमेश्वर के वचन को पढ़ने की। May I urge you to read the word of the Lord? क्या मैं आपसे आज सुबह ये अपेक्षा करता हूँ कि आप परमेश्वर का वचन पढ़ें? Because the word says your words were found, I ate them, and your words became a joy to me. वहाँ पे ऐसा लिखा है, तब मैंने तेरे वचन को पा लिया, उसे खा लिया और वो मेरे हृदय, मेरे मन के लिए हर्ष और आनंद बन It गए। became a delight to me. वो मेरे लिए हर्ष बन गए। This word will change you. ये वचन आपको बदल देगा। This word will fill you with peace and ये joy. वचन आपको शांति से और आनंद से भर देगा। This word will delight your life. ये वचन आपके हृदय को हर्ष से भर देगा। I urge you to read. मैं चाहता हूँ आप इस वचन को पढ़ें। I urge you to eat the word of the मैं Lord. चाहता हूँ आप इस वचन को खा लें। Take this spiritual food every day. इस आत्मिक भोजन को प्रतिदिन खाएं। Because this is the best of best. ये सबसे उत्तम से भी उत्तम है। Written by God. परमेश्वर के द्वारा लिखा गया है। Praise Jesus. Hallelujah. The third good thing that will come out of Nazareth. तीसरी चीज जो नासरत से निकल कर आई And that is hope. और वो है आशा। That is hope. वो है आशा। Proverbs chapter 23 verse 18. हम देखते हैं नीति वचन उसका Proverbs chapter 23 verse 18. नीति वचन उसका 23वां अध्याय और उसका 18वां पद। Let me read for you. मैं चाहता हूँ आपके लिए पढ़ने के लिए। Surely there is surely a future hope. क्योंकि अंत में फल होगा। Surely there is surely a future hope. क्योंकि अंत में फल होगा Future hope for you. और तेरी आशा ना The टूटेगी। word is saying to you right now. परमेश्वर का वचन आपसे अभी कहता A है, future hope for all of us. हम सबों के लिए भविष्य के लिए एक आशा है। Life Bridge family, the Lord is speaking to us. लाइफ ब्रिज कलीसिया को लिए परमेश्वर हमसे बात कर रहा A है। future hope for everyone over हम here. सबों के लिए जो यहाँ उपस्थित है उनके लिए भविष्य में एक आशा And है your hope will not be cut off. और आपकी आशा टूटेगी नहीं। Amen, amen. Hallelujah, hallelujah. And your hope will not be cut off. आपकी आशा टूटेगी नहीं। Amen. Praise the Lord. If you're concerned about your future this morning, अगर आज सुबह आप अपने भविष्य के लिए चिंता कर you're रहे हैं, worried about your kids, what are they, what will happen in the days ahead. आप अपने बच्चों के लिए चिंता कर रहे हैं, क्या होगा उन लोगों के लिए You're आने वाले concerned समय about में? your family, आप अपने परिवार के लिए बहुत चिंतित हैं। what future waits for us. कैसा भविष्य आने वाले समय में रखा है आप सोच रहे हैं? Jesus of Nazareth is saying that your future is secure in my hand. यीशु जो नासरी है वो कह रहा है उसके हाथों में आपका भविष्य सुरक्षित है। Praise Jesus. Hallelujah. Hallelujah. And at the end, Romans chapter 15 verse 13. और रोमियो की पत्री उसके 16वें अध्याय 15वें अध्याय का 13वां पद। Let me read for you Romans chapter 15 verse 13. मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ रोमियो की पत्री उसका 15वां अध्याय का 13वां पद। As I conclude my words over here, जब मैं यहाँ अपने संदेश को समाप्त करता I हूँ, want all of you to take your Bible and underline this very verse. मैं चाहता हूँ कि आप लोग सब अपनी बाइबल को अंडरलाइन कर लें, रेखांकित कर लें। Romans 15:13 it says, may the God of hope, वहाँ पे ऐसा लिखा है, परमेश्वर जो आशा का दाता है, may the God of hope fill you with all joy. तुमको अपने विश्वास के कारण अपने आनंद से भर दे, Fill you with all joy and peace. अपने आनंद और शांति से परिपूर्ण कर दे। We see
see hope, joy, and peace over here. हम यहाँ देखते हैं आशा, शांति और आनंद यहाँ पर लिखा गया As है। you trust in Him. जब आप उस पर भरोसा रखते हैं, If you trust in Him, you will experience joy, peace, and hope in your अगर life. आप उस पर भरोसा रखते हैं, आप अपने जीवन में आनंद, शांति और आशा को अनुभव करेंगे। If you look to Him, God is there to fill you with these three things. अगर आप परमेश्वर की ओर अपनी नजर लगा के रखेंगे, परमेश्वर आपको इन 3 चीजों से भर And it देगा। says so that you may overflow. ताकि यहाँ पर ऐसा लिखा है, ताकि आप उमड़ने लगे, So that you may overflow with hope ताकि आप परिपूर्ण हो जाएं आशा में, by the power of the Holy Spirit. परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा। Thank you, Jesus of Nazareth. धन्यवाद उस यीशु नासरी के Thank लिए। you, Jesus of Nazareth. धन्यवाद उस यीशु The Lord नासरी is के लिए। here this morning. प्रभु यीशु मसीह आज यहाँ पर उपस्थित है।